تم کو دو چاند کی دید ہو جائے گی، عید سے پہلے ہی عید ہو جائے گی۔ اپنی امی کے چہرے کو دیکھا کرو، اپنی امی کے چہرے کو دیکھا کرو، چاند ہر سال رمضان کا آدھے۔ تو ہیلو دوستو، السلام علیکم، نمسکار۔ آپ دیکھ رہے ہیں رضوان آفیشیل پوائنٹ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے، جھکاس ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ریئیکشن کرنے والا ہوں ریئل اسٹوری آف ارطغرل غازی۔ آخرکار ارطغرل غازی کون تھے، اتنے طاقتور بنے کیسے، اور ارطغرل غازی کتنے دیشوں پر راج کیے ہیں، آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ اس سے پہلے میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیے ویڈیو پلے کرتے ہیں۔ میوزک سن کر تو دل ایک دم گد گد ہو جائے۔ صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا۔ ارطغرل غازی مزے کی کوئی داستان یا کوئی قصہ نہیں، بلکہ مسلمانوں کے اتہاس کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ارطغرل غازی اس دور کی کہانی ہے کہ جب مسلمانوں کا تخت اس زمین کی بجائے ساتویں آسمان پر ہوا کرتا تھا۔ یہ کہانی ہے اس بہادر شخص کی کہ جس نے نہ صرف ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی کہ جس نے 600 سال سے زیادہ آدھی دنیا پر حکومت کی، بلکہ ساتھ ساتھ اپنی بہادری سے اس دور کے مسلمانوں میں وہ حوصلہ اور وہ ہمت پیدا کی کہ اس دور میں مسلمانوں کے سامنے ٹکنے والا کوئی بھی موجود نہیں رہا۔ وہ بہت جلد ایک جنگجو بھیجے گا جو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ آخر کون تھا یہ بہادر شخص؟ کون تھا بہادر؟ ارطغرل، کہ جس کی کہانی دیکھ کر آج پوری دنیا پاگل ہو گئی پاگل ہو گئی، بات آخر صحیح ہے۔ کون ہے یہ ارطغرل کہ جس کا نام سن کر آج بھی امریکہ اور اسرائیل جیسے طاقتور ملک تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ ارطغرل غازی سے مسلمانوں کے دشمنوں کو کتنا ڈر لگ رہا ہے، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سیریل ابھی تک تقریباً 20 سے 25 ملکوں میں بین کیا جا چکا ہے، اور سبھی کٹر اسلامی دشمن ملک ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ رجب طیب اردوغان اس سیریل کے ذریعے سے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، لیکن تمام دشمنان اسلام کی کوششوں کے باوجود لوگوں پر سے اس کا نشہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، بیش اور آج پوری دنیا بات میں صحیح ہے۔ تقریباً 160 دیش ایسے ہیں کہ جس میں یہ بڑے شوق سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ یہ لاک ڈاؤن میں لگ بھگ سم تھنگ سارے کنٹری کو انڈیا ریکارڈ توڑ دیا تھا ارطغرل غازی دیکھنے کے معاملے میں۔ آج کہانی دیکھنے کے لیے پوری دنیا بیتاب ہے۔ یہ تھا کون ارطغرل غازی؟ تو چلیے بنا کسی دیر کے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آرش نیٹورک کے معزز دوستوں، میں ہوں ساجد زہیر، اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو سب سے پہلے میرا سلام عرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل یہ کہانی شروع ہوتی ہے 13ویں صدی سے، 13ویں صدی، جب چنگیز خان کی منگولی سینا پوری دنیا میں لوٹ مار کرتی ہوئی مسلمانوں اور یوروپ کے بھی کئی ملکوں پر فتح حاصل کر رہی تھی۔ اس وقت کی یہ کہانی تھی۔ منگول ایسے وحشی درندے تھے جو جہاں بھی جاتے خون کی ندیاں بہا دیا کرتے تھے، نہ بچوں کی احتیاط کرتے تھے، نہ بوڑھوں کی لحاظ کرتے تھے، اور نہ ہی عورتوں کو چھوڑتے تھے۔ ہر جگہ تباہی پھیلانا ہی ان منگولوں کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ جب یہ منگول خوارزم کے علاقے تک پہنچے تو یہاں ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا جو اس علاقے کو چھوڑ کر ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا۔ اس قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ۔ کائی قبیلہ۔ اس قبیلے کا سردار تھا سلیمان شاہ۔ ارطغرل سلیمان غازی شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ تیسرے نمبر کا کے بیٹا والد کا تھا نام ارطغرل غازی، اور یہی وہ بیٹا تھا کہ جس کے اوپر یہ ڈرامہ یعنی سیریز کو بنایا گیا ہے۔ یہ وہ جاواز ہستی ہے کہ جس کے کردار کو اس میں دکھایا گیا ہے۔ سلجوق کی سلطنت کی شہزادی حلیمہ سلطان اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کو عیسائیوں نے قید کر لیا تھا۔
जंगल के रास्ते से जब ईसाई इसको महल ले जा रहे थे तब ये लोग अर्तगरुल गाजी के हत्थे आ गए। अर्तगरुल ने शहजादी हलीमा और उसके बाप और उसके भाई को ईसाइयों से छुड़वा लिया। बस यहीं से शुरुआत होती है इस जाबाज दिलहर अर्तगरुल गाजी की। इस घटना के बाद कई बार इस कबीले पर ईसाइयों की तरफ से तरह तरह की परेशानियां आने लगीं, मगर अर्तगरुल ने बड़ी ही दिलहरी के साथ इन तमाम परेशानियों का डटकर मुकाबला किया। अर्तगरुल गाजी का जो सबसे बड़ा दिलहरी और होशियारी का काम था वो ये था कि उसने ईसाइयों के उस किले को ही फतह कर लिया था जहाँ से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें तैयार हुआ करती थीं। इस किले में बड़े बड़े ईसाई पादरी मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक आलमी जंग की साजिशें रच रहे थे, मगर अर्तगरुल गाजी अपनी बहादुरी के साथ इन तमाम के इरादों पर पानी फेरता चला गया। जब अर्तगरुल ने इस किले को फतह किया तो पूरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम सल्तनतों में अर्तगरुल की दिलेरी और बहादुरी का डंका ज़ोर शोर से बजना शुरू हो गया और यहीं से अर्तगरुल नाम का एक ऐसा तूफ़ान उठा कि पूरी दुनिया में दुश्मनान इस्लाम इस तूफ़ान में उड़ते चले गए। मंजिलें मारते बरक रफ्तार शह सवारों की कसम, माशाअल्लाह दौड़ते सुमो से उड़ती क्या चिंगारियों की कसम, दौड़ अपनी था। नामूस की खातिर, असलाफ के नाम की खातिर, सारी दुनिया कांप किसी उठती जंग में थी। अगर मैं पीठ दिखाने का सोचूं भी तो खुदा मुझे किसी नामूस की शमशीर से नीज़ तो नाबूद कर दे, मुझे सीना-ए अर्श पर कहीं पनाह न मिले, तारीख के वर्क से मेरा नाम हमेशा के लिए मिट जाए। एक बार की बात है कि दरियाए फरात को पार करते हुए काई कबीले के सरदार और अर्तगरुल के बाप यानी सुलेमान शाह दरिया में डूबकर इंतकाल कर गए। इसके बाद कबीले वालों ने अर्तगरुल गाजी को अपना सरदार चुन लिया, क्योंकि जाहिर है कि अर्तगरुल जैसा बहादुर और ज़हीन शख्स उस कबीले में उसके बाप के बाद कोई भी मौजूद नहीं बचा था। अर्तगरुल की सरदारी में उस कबीले ने खूब तरक्की की और उस तुर्की कबीले ने अनातोलिया की तरफ रुख कर लिया। अर्तगरुल के दो भाई उनसे अलग हो गए, जबकि अर्तगरुल अपने छोटे भाई के साथ सफ़र पर निकल पड़ा। बीच सफ़र में अर्तगरुल ने देखा कि दो सेनाएं जंग कर रही हैं। एक सेना बड़ी कमज़ोर है और एक सेना बड़ी मजबूत है। कमज़ोर वाली सेना हारने के कगार पर आ पहुंची थी, तो अर्तगरुल ने हारती हुई सेना का साथ दे दिया। ये जंग थी सल्जूक और मंगोलों के बीच, मगर ये बात अर्तगरुल के इल्म में नहीं थी। मंगोलों की फ़ौज अलाउद्दीन की सल्जूक वाली फ़ौज को शिकस्त देने ही वाली थी कि अचानक अर्तगरुल अपने 404 बहादुर फ़ौजियों के साथ सल्जूक की फ़ौज में मिल गए और मंगोलों को इस कदर मारा कि मंगोल अपने ही लोगों की लाश मैदान में छोड़कर भाग गए। ये थी अलाउद्दीन कुछ देर अर्तगरुल पहले मंगोलों को गाजी हाथों अपनी शिकस्त की ताकत। यकीनी समझ रहा था, मगर अर्तगरुल की मदद से इतना खुश हुआ कि अर्तगरुल को शहर अंगोरा या अंकारा के करीब जागीर अता कर दी। अर्तगरुल एक बेमिसाल और समझदार सरदार था, जिसकी समझदारी दुनिया के कोने कोने में फैल गई थी। दुश्मनान इस्लाम इसकी जहानत और इसकी बहादुरी को देखकर हर वक्त परेशान रहा करते थे। मुसलमानों की सल्जूक की सल्तनत उस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। एक तरफ रूमी फ़ौज और दूसरी तरफ खूंखार मंगोल, इन दोनों के बीच सल्जूक की सल्तनत पिसी चली जा रही थी। अनकरीब था कि ये सल्तनत ख़त्म ही हो जाती, मगर जिस दिन से अर्तगरुल गाजी इस सल्तनत में आए उसी दिन से ये सल्तनत खूब परवान चढ़ने लगी, तरक्की पाने लगी। अर्तगरुल गाजी अपने निडर सिपह सालारी से रूमियों और मंगोलों को लगातार शिकस्त देता चला गया और अपनी सल्तनत को बढ़ाता चला गया। उस वक्त कोई ऐसा बादशाह नहीं था जो अर्तगरुल गाजी को टक्कर दे सके। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब अर्तगरुल गाजी अपनी वफ़ात से पहले बहुत ताकतवर हो चुका था। सन 1258 ईस्वी में अर्तगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया उस्मान। ये वही उस्मान था जिसके नाम पर तुर्की की सल्तनत उस्मानिया कहा गया। उस्मान भी अपने बाप अर्तगरुल की तरह ज़हीन, बहादुर और निडर था। 1288 में अर्तगरुल ने वफ़ात पाई। इसके बाद 1299 में अर्तगरुल का बेटा उस्मान अपने बाप की गद्दी पर बैठा। उस्मान में एक तरफ ईमानदारी और दूसरी तरफ बहादुरी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। उस्मान इस कदर अपनी ताकत को बढ़ाता चला गया कि कुछ ही सालों में 3 बर्र-ए-आज़मों पर यह सल्तनत फैल गई और इस सल्तनत का नाम पड़ा सल्तनत उस्मानिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया में तकरीबन आज के 40 देश मौजूद थे,
यानी 40 देशों पर अकेले हुकूमत थी और ये सल्तनत 1923 तक लगातार बनी रही। 1923 कई तक। सुल्तान आए जिन्होंने इस सल्तनत को कायम रखा, मगर अफसोस 600 साल बाद फिर ये सल्तनत उस्मानिया बुराइयों और कमज़ोरियों का शिकार होने लगी। 1923 में इस सल्तनत को एकदम से ख़त्म कर दिया गया। जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ यानी पहला विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ कुछ देश बरतानिया के साथ आ गए जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस वगैरह थे, तो दूसरी तरफ तुर्की के साथ जर्मनी और कुछ देश और भी थे। मगर फिर उस वक्त का जो तुर्की का आखिरी सुल्तान था उसको साजिश के तहत देश से निकाल दिया गया। अमेरिका, रूस, बरतानिया ने ज़बरदस्ती उसके सुल्तान को फंसाकर और उसको मजबूर किया कि तुम किसी तरह से भी अपनी सल्तनत को बचाने के लिए हमसे मुआहदा करो, यानी एक समझौता करो, वरना तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर दिया जाएगा। लिहाजा उन तमाम साजिशों के तहत एक समझौता किया गया, एक मुआहदा किया गया, जिस समझौते को लोजान समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते की शर्त थी कि तुर्की का सुल्तान इस्तीफ़ा देगा, इसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, खिलाफत वापस कायम करने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि खिलाफत उस्मानिया पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। और सबसे बड़ी और घातक जो शर्त थी वो ये थी कि अब 100 साल तक तुर्की अपनी ही ज़मीन पर ख़ुद से तेल या पेट्रोल जैसी कोई भी चीज़ नहीं निकाल सकेगा। तुर्की को तेल या पेट्रोल दूसरे देशों से ही ख़रीदना होगा और साथ ही साथ तुर्की की बंदरगाह पर भी पाबंदी लगा दी गई, जो कि एशिया और यूरोप को आपस में मिलाती है। इसे आलमी मिल्कियत करार दे दिया गया, यानी अब कोई भी देश का जहाज़ इस बंदरगाह से गुज़र सकता है और तुर्की किसी से भी किसी तरह का भी कोई टैक्स नहीं वसूल कर सकता। यानी अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो ये कह सकते हैं कि तुर्की को इस समझौते के ज़रिए 100 साल के लिए एक कोने में बांधकर फेंक दिया गया, यानी अब तुर्की कुछ भी नहीं कर सकता था। अमेरिका ने अपने गुलाम मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो कि मुस्लिम गद्दार शख्स था, उसको तुर्की का बादशाह बना दिया, जिसने तुर्की को एक सेकुलर देश घोषित किया, जिसकी वजह से हर तरफ बेहयाई, शराबनोशी और मगरबी कल्चर आम होने लगा। मगर अब 2023 में ये समझौता ख़त्म होने वाला है और जब ये समझौता ख़त्म होगा तब पहले जैसा तुर्की बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तुर्की एक ऐसा देश बनेगा जो अमेरिका और इजराइल जैसे बड़े बड़े देशों को भी आंखों में आंख डालकर मुंह तोड़ जवाब देगा। अल्लाह ने तुर्की को रजब तैयब अर्दोगान जैसा मुस्लिम उम्मत का दर्द रखने वाला एक लीडर दिया है, जिसने अपनी समझदारी और अपनी ईमानदारी के चलते एक बार फिर सेकुलर तुर्की को इस्लामिक तुर्की की जानिब गामज़न कर दिया है। और इसी वजह से आज अमेरिका, इजराइल जैसे तरक्की याफ्ता देश तुर्की को बर्बाद करने की हर साजिश कर रहे हैं। ये देश अर्तुगरुल गाज़ी को बंद कराने की हर वो साजिश कर रहे हैं जिससे कि ये ड्रामा बंद हो जाए और मुसलमान सोया का सोया रह जाए। मगर अब देर हो चुकी है, हर मुसलमान के दिल में इसका नशा सवार हो चुका है। आप सुने रियल स्टोरी ऑफ अर्तुगरुल गाज़ी। आखिरकार अर्तुगरुल गाज़ी से लोग डरते क्यों थे? बैन, तुर्की पे बैन कैसे लगा, क्यों लगा, आप सारा बयान इसमें सुने। 2023 के बाद फिर से वही दौर आएगा या फिर वही चलेगा? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।